Good morning, student. Now this is your class 7. Your subject is science. Now today we are start acid, base and salt. Okay, acid, base and salt. First of all, what is acid? The substance contain acid. The substance contain acid is called the acidic substance. The some use up to the daily life acetic acid as a vinegars, and to be the turmerins, the turmeric acid called lactic acid. This type of acid we are used into the daily life. Some acid are to be the occurs in the natural, and this is called the organic acid. And now some acids are the weak, some acid are to be the strong. Now this the natural acid always be the weak acid, just like the acetic acid, tartaric acid, lactic acid. This is the weak acid. And now hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid, this type of acid are to be the strong acid. And now the minerals acid and sulfuric acids, they are to be the strongest acid. Means the minerals acid just like sulfuric acid, जैसे the what is the formula of sulfuric acid? H2SO4. This is the sulfuric acid, the strongest acid. This is to be the called strongest acid. Now what is the base? The bitter and soapy taste. Bitter, and if you taste then is the bitter, and if you are touch this the things is the soapy. This is called to be the base produced the dissolving the metal oxide in the water. An example of sodium hydroxide, caustic soda, potassium hydroxide, potash, calcium hydroxide, slack lime, magnesium hydroxide, milk. They are to be the base of our the daily life. The sodium and potassium hydroxide are the strong base. Now after, what is the indicators? How can you recognize this is the things are to be the acid and the base? The how the indicators, the litmus papers. By the litmus papers you can easily be recognized. If the red litmus paper convert into the if you dissolve into the acid, then to be the color will be red. If the litmus papers are red, convert into the blue, is to be the called base. And now what is the properties and use of our the acid? And now properties of acid, the acid are the sour in the taste. Acid हमारा क्या होता है? Sour taste होता है. They to be the corrosive in the nature, और nature में हमारा वो corrosive होता है. They are the acid turn the blue in the red, and the acid react with the water and evolve a lot of heat. क्या है कि ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारा हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. It is with the contact with the acid, then the acid is called to the concentrated acid and react with the metals. First, what is the how to the react with the metal acid? Earlier we know that the sodium is the metals, and now HCl is the hydrochloric acid. If you react with both, then sodium chloride is the make and hydrogen भी उसमें remove. And now the react with the carbonate. अगर हम लोग एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनेट CaO3 होता है, और उसके साथ अगर हम लोग HCl को मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोरीन to be the water and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वो बनता है. अगर मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है. अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो हमारा वो CaSO4 और प्लस H2O हमारा वो बनेगा. मतलब कैल्शियम सल्फेट और वाटर हमारा दो पार्ट में वो बनता है. नाउ रिएक्ट विद द बेस. अगर हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं
तो हमारा बनता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किसे मिलाएंगे, इन नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम लोग मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट और सॉल्ट हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एसिड, द सच द विनेगर्स यूज्ड टू द preservative and acid are used to the fire execution. The sulfuric acid is the widely used in the car batteries and also used to the manufacturing the drugs. हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग बैटरी, कार की बैटरी में भी करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग ड्रग्स बनाने में, पेपर बनाने में, लेदर्स का और प्लास्टिक बनाने में भी करते हैं। एसिड आर यूज्ड टू द क्लीनिंग इन द इंडस्ट्री। हम लोग एसिड का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रीज का वेसल्स वगैरह में जो बॉयलर्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ आफ्टर दैट वे properties of base and what is the use of our base. The base are the bitter in taste and soapy to touch. हम पहले ऑलरेडी डिस्कस, अगर हम लोग इसका टेस्ट करते हैं तो वो हमारा बिटर टेस्ट का होता है और ये टच करेंगे तो वो हमारा सॉपी होता है। जैसे हम लोग साबुन को टच करते हैं तो हमारा हाथ स्लिप करता है, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नाउ टर्न द रेड, अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसको हमको ब्लू कलर में ये कन्वर्ट कर देता है, तब हम लोग इसको पहचानते हैं कि ये हमारा बेस है। एंड नाउ दे रिएक्ट विद द नॉन मेटल, और बेस क्या होता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे रिएक्ट विद द सोडियम ऑक्साइड और कार्बन, दोनों को मिलाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर दोनों में बनता है। एंड नाउ रिएक्ट विद द एसिड, अगर हम लोग बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनता है। नाउ यूज ऑफ द बेस, बेस का यूज क्या है, तो इसमें हम लोग सोप का इंडस्ट्रीज में काम आता है, साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू द एंटीसेप्टिक्स द क्योर एसिडिटी, मतलब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, एसिडिटी का अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसमें उसको बचाने के लिए, क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। दिस इज द पेपर, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज और मेडिसिन में भी बेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर रिफाइन द पेट्रोल, और इसको हम लोग पेट्रोल को रिफाइनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मींस अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन एसिड के साथ, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और हमारा वाटर में बन जाता है। अगर हम लोग इट सॉल्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय सम अदर रिएक्शंस एंड द मैग्नीशियम को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट होता है, ये हमको सॉल्ट बनाने का एक ये होता है बनाने का रिएक्शंस है। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाएंगे तो हमारा सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट होता है वो बनेगा एंड विद एंड अदर दूसरा, अगर मैग्नीशियम मेटल्स है उसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम लोग मिलाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी हमारा एक तरह का सॉल्ट है एंड उसमें से भी हाइड्रोजन रिलीज होता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, प्रॉपर्टीज क्या है, तो ऑल सॉल्ट सोल्यूबल इन द वाटर, जितने भी सॉल्ट है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। द रिएक्ट विद द एसिड प्रोड्यूस द अनदर, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दूसरा एसिड सॉल्ट को और एसिड को बनाता है। द सॉल्ट रिएक्ट विद द बेस प्रोड्यूस द अनदर बेस ऑफ द सॉल्ट, क्या करता है कि अगर ये रिएक्ट करेगा सॉल्ट के बेस के साथ तो ये दूसरा बेस और सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। two salt react the each other produce the new salt, अगर दो सॉल्ट एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोई दूसरा सॉल्ट को बनाता है। एंड नाउ
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू द न्यूट्रलाइजेशन, अगर हमारा प्रैक्टिकल डेली लाइफ में की बात करते हैं तो सबसे पहला इंडाइजेशन क्या होता है। इंडाइजेशन, अगर कोई चीज़ हम लोग खाते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग एसिडिटी हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टोमक में फैल जाता है, तब हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीसेट लेते हैं, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो। उसके बाद एंट एंड बिट, अगर कोई चींटी वगैरह काट लेता है या मधुमक्खी वगैरह काट लेता है तो हमारा वो भी क्या करता है कि हमारा जलने की तरह लगता है, वो भी हमारा वो एक तरह का एसिड होता है। और सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फार्मर जो होते हैं, जो चूना वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर उसको। उसके बाद डिस्पोज द फैक्ट्री वेस्टेज का जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो एसिडिक होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, वो डेंजरस होता है एक्वेटिक फील्ड के लिए, तो हम लोग उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको पावर एसिडिटी और बेस पावर को कम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। तो दैट इज द चैप्टर्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एंड नाउ दिस इज टू बी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड नाउ I will be sent the PDF of this chapters, and now some questions, then we will be discussed later. Thank you.